جو ختم کرنا ہے بدعت رضا رضا بولو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زہیب شیخ فرام ممبئی سے انہوں نے سوال پوچھا، حضرت ایک عالم صاحب سے سنا ہے کہ صغیرہ گناہ کو ہلکے میں لینے سے وہ کبیرہ بن جاتا اور کبیرہ گناہ کو ہلکے میں لینے سے بات کفر تک چلی جاتی ہے، ہم گنہگاروں پر کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے، صغیرہ گناہ پر اصرار کرنا یعنی مسلسل چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہنا اور توبہ نہ کرنا اور اسے بالکل ہلکے میں لے لینا، تو یہ گناہ کبیرہ تک پہنچتا ہے، اور گناہ کبیرہ جو ہے وہ درجہ حرام کو پہنچتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور کوئی حرام کو حلال سمجھ لے تو وہ کفر کو پہنچے گا۔ تو بہرحال یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ گناہ کبیرہ پہ اصرار کرنے سے کفر تک پہنچتا ہے، ہاں حرام تک ضرور پہنچتا ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہے اور گناہوں سے بچنے کی اسے توفیق مانگے، کیونکہ اللہ کے توفیق کے بنا کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتا رہے گا۔ کسی بھی گناہ پہ اصرار نہ کریں، یعنی کنٹینیو اس کو نہ کرتے رہیں، ہو جائے تو توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں، پھر بھول چوک سے ہو جائے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے اور عزم مصمم کرے کہ یہ گناہ مجھ سے نہ ہو، تو انشاءاللہ الرحمن انسان کفر کی منزل تک نہیں پہنچے گا۔ وعلیکم السلام۔ رضوان انصاری فرام کلکتہ سے انہوں نے سوال پوچھا کہ ایک شخص مؤذن صاحب کے ساتھ افطار کرتا ہے، مؤذن صاحب گھڑی دیکھ کر افطار کرتے اور ان کو دیکھ کر وہ شخص بھی افطار کرتا ہے، تو کیا وہ شخص اذان تک کا انتظار کرے؟ بھیا اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، افطاری کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ کیا رمضان کے بعد اذان نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا۔ تو اذان جو ہے وہ نماز مغرب کے لیے، اور افطار کا وقت اذان سے پہلے کا ہے۔ تو جب مؤذن صاحب افطار کرتے ہیں اس وقت اس کو بھی چاہیے کہ افطاری کر لے۔ السلام۔ عون حنفی نے ممبئی سے سوال پوچھا کہ کوئی ایسی تنظیم مدرسے کی جہاں بچوں سے فیس بھی لی جاتی ہے اور ہر ماہ ایڈمیشن فیس بھی، اور بچے وہاں صرف پڑھتے ہیں رہتے نہیں، ایسی تنظیم کو زکوٰۃ فطرہ دینا کیسا؟ دیکھیے، زکوٰۃ فطرہ ڈائریکٹ کسی بھی مدرسے کو یا تنظیم کو نہیں دی جاتی ہے، بلکہ کسی کو وکیل بنایا جاتا ہے۔ مثلا جو لوگ مجھے زکوٰۃ دیتے ہیں وہ مجھے وکیل بناتے ہیں۔ اب میرا فرض ہے کہ میں اسے حیلہ کروں، یعنی کسی غریب کو اس کا مالک بناؤں کہ جب وہ غریب مجھے واپس دے تو اب وہ ہدیہ ہوگا نہ کہ زکوٰۃ ہوگی، اب وہ پیسہ میں کہیں لگا سکتا ہوں۔ لیکن جو صورتحال آپ نے بتائی ہے کہ جس مدرسے میں ایڈمیشن فیس بھی لی جاتی ہے، بچوں سے منتھلی فیس بھی لی جاتی ہے اور وہاں بچوں کا دارالاقامہ نہیں ہے، تو ایسی جگہ نہ دیں، بلکہ ایسی جگہ دیں جہاں پر بچے قیام و طعام کے ساتھ رہتے بھی ہوں، ان کا علاج و معالجہ بھی ہو، کتابیں وغیرہ بھی ان کو دی جاتی ہو، ایسے مدرسے میں دینا زیادہ بہتر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تسلیم انصاری مسقط عمان سے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ حضرت زکوٰۃ کا کیا حساب ہوتا؟ مثلا 100 روپے میں کتنا ہوگا؟ 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 روپے میں 25 روپے۔ اب آپ کو جتنے پیسوں کی نکالنا اسی حساب سے جوڑ لیجیے۔ وعلیکم السلام۔ محمد غوث رضا اتاری چینئی تمل ناڈو سے انہوں نے سوال پوچھا ہے کیا ہر مسلمان کا جسم قبر میں گل جاتا ہے؟ کیا قبر میں جسم گلنے سے مردے کو تکلیف ہوتی ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ نہیں، ہر مسلمان کا نہیں گلتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندے، شہداء کرام، ان کے جسم اپنی قبروں میں سلامت ہوتے ہیں، اور بہت مرتبہ لوگوں نے دیکھا بھی ہے کہ کئی 100 سال پرانی قبریں کھودی گئی اور جسم صحیح سلامت نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ اپنی طرف سے نعمت رکھی ہے کہ زمین کو ان کے جسم کی غذا سے محروم رکھا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تو حدیث پاک ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ حضور اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور اللہ کی جانب سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اب جن کا جسم گلتا ہے انہیں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ اہل السنت والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ عذاب قبر جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ جو کہے کہ روح پر عذاب ہوتا ہے جسم پر نہیں، وہ گمراہ ہے۔ جو کہے جسم پر ہوتا ہے روح پر نہیں، وہ بھی گمراہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب جسم میں کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو وغیرہ لگیں گے اور جسم گلے گا تو مردے کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے کثرت سے ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ساجد نظامی مندسور مدھیہ پردیش سے بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ ایک بیوہ عورت کے 3 چھوٹے بچے ہیں، وہ کپڑے بیچتی ہے
और उनके पास इतनी मालियत के कपड़े हैं जो निसाब तक पहुंचते हैं, तो क्या उन्हें ज़कात दे सकते? नहीं, वो खुद साहिब निसाब है, उनको ज़कात देनी पड़ेगी। बेवा होने का मतलब ये नहीं कि ज़कात ले। अब बहुत सी करोड़पति औरतें भी बेवा है, तो बेवा होने का मतलब ये भी देखें कि उसके पास निसाब तक का पैसा न हो, सोना चांदी न हो, तो ऐसी जरूरतमंद खातून को देना चाहिए। बहरहाल जो सूरत आपने बताई, इस सूरत में इस खातून को ज़कात नहीं दी जा सकती है, बल्कि उस खातून को चाहिए कि वो ज़कात निकाले। वल्लाहु ताला आलमु बिस्सवाब। सलाम। सज्जाद साहब ने दिल्ली से सवाल पूछा कि तालीम ने अपनी बेटी की शादी वहाबी से कर दी, और कोई पूछे तो कहता है कि मुझे मालूम नहीं था। उसके पीछे नमाज होगी? नहीं, ऐसे आलिम के पीछे नमाज नहीं होगी जिसने अपनी बेटी जिना के लिए वहाबी को पेश की, क्योंकि वहाबी से निकाह होता नहीं है, और जितनी रातें वो साथ गुजारते हैं वो जिना है, सोहबत नहीं है। तो लिहाजा उस आलिम के पीछे नमाज नहीं होगी। मालूम नहीं था, अब मालूम हुआ तो बिना तलाक के अपनी बेटी को लेकर आए और बिना इद्दत गुजारे उसका निकाह किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम के साथ करे। जब तक वो ऐसा नहीं करेगा उसका बाइकआउट किया जाएगा। सलाम। मोहम्मद फरीदुद्दीन फारूकी यूपी बनारस से हाफिज साहब ने सवाल पूछा है कि जैद कहता है कि हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बरहना होकर गुस्ल नहीं करते और जैद इस पर अमल करता है। जैद का कहना और अमल दुरुस्त है? हाँ, जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत हयादार थे और बहुत शर्मो लिहाज वाले थे। आप इससे भी अंदाजा लगा लीजिए कि एक मतलब हजरत उस्मान गनी तशरीफ लाए तो आपकी पिंडली से कपड़ा हटा हुआ था। जब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर को उनके आने की खबर दी तो आपने फौरन अपनी पिंडली का कपड़ा दुरुस्त फरमाया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा से किसी भी सहाबी से ये मनकूल नहीं है कि आपने बरहना गुस्ल फरमाया हो, लेकिन बरहना गुस्ल करना जायज़ है। फुक़हाए किराम ने इसकी इजाज़त दी है, जैसा कि मिरक़ात जिल्द 2 सफ़ा 239 पर पूरी इबारत मरकूम है कि कोई ऐसी जगह नहाए जहां पर कोई देखने वाला ना हो, तो बंदा वहां पर बरहना यानी नंगा नहा सकता है, इसकी इजाजत है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि हुजूर नहीं नहाते थे मैं नहाता हूं, तो ये बेअदबी है, गुस्ताखी है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को काटना हुआ। बाद सहाबाए किराम ने इस तरह गुस्ल किया है, हुजूर ने उन्हें रोका टोका नहीं, ये भी हदीस है। लिहाजा इसलिए जवाज का हुक्म दिया गया कि नहा सकते हैं, लेकिन अपने इस अमल को जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से मुकाबिल लाकर उसकी मुखालिफत न करें। सलाम। मोहम्मद फुरकान रज़वी कादरी एटा यूपी से इन्होंने सवाल पूछा, क्या लाइफ इंश्योरेंस की जो रकम बैंक में जमा होती है क्या उस पर ज़कात निकाली जाएगी? जी हाँ, जब वो पैसा मिल जाए तो जितने सालों तक वो पैसा रहा उतने पैसों की ज़कात निकाले। और इन्होंने पूछा जहेज का जो सामान यूज नहीं होता, हाजती असलिया के अलावा जितना सामान है, हाँ वो किताबें ही क्यों ना हो, समझ में आई बात? हदीस और कुरान की तफासीर की छोड़कर इल्मे सर्फ 9 की किताबों पर तक ज़कात का हुक्म उलमा ने दिया है। तो ज़कात निकालेगा, लेकिन निकालेगा कौन? लड़की, इसलिए कि जहेज का सामान लड़की का अपना हक है। बात जाहिल लोग ये समझते हैं लड़की जो कुछ लेकर आई वो ससुराल वालों का है, शोहर का, ऐसा नहीं, वो लड़की की अपनी मिल्कियत है। तो जो सामान भी वेस्ट हो, इस्तेमाल में ना आता हो, हाजत के अलावा हो, मसलन 4 गिलास इस्तेमाल में आते हैं लेकिन 8 गिलास है, तो अब जो जायज सामान है उनको जोड़ जाड़े अगर वो निसाब तक पहुंचते हों या फिर दूसरे जरिए से वो साहिब निसाब हो, मसलन उसके पास 30,000 रुपये हो या 7.5 तोला चांदी या 52.5 तोला या 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो और उस एतबार से वो साहिब निसाब हो, तो अब इनको भी जोड़ जाड़ के इनकी भी ज़कात निकाले। सलाम। मोहम्मद आमिर रजा हैदराबाद टोली चौकी से साहब पूछते हैं, नमाज में कपड़ा फोल्ड करके नमाज पढ़ना कैसा है? बाज भाइयों को समझाने पर भी वो फोल्ड ही करके पढ़ते हैं। नमाज में कपड़ा फोल्ड करना मकरूह तहरीमी है, नमाज वाजिबुल इआदा है। जिसने भी ऐसी नमाज पढ़ी है उसको नमाज को दोहराना पड़ेगा, वो भी कपड़ा सीधा करके, फिर कपड़ा उल्टा करके ना पड़े, वरना फिर दोहराना पड़ेगा। समझाइए, आपका काम समझाना है और समझाने से ही, समझाना अहले ईमान का खासा है, हिस्सा है। जो नहीं समझते हैं समझाने के बाद भी उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए।
वालेकुमुस्सलाम। इमरान रजा खान हैदराबाद से, इन्होंने सवाल पूछा, तालिब होना कैसा? तालिब कहते हैं तलब करने वाले को। जब किसी शख्स के पीर साहब फौत हो जाएं या बहुत दूरों दराज पे रहते हो, उनसे मुलाकात न होती हो, तो किसी आमिल शरीयत और उस पीर से जिसको शरीयत मुतहरा ने पीर कहा है, आप तालिब हो सकते हैं। शरीयत में इसकी इजाजत है और ये मसाइल जो है अहले तसव्वुफ के है, तरीक़त के है, बिल्कुल जायज़ है, कोई क़बाहत नहीं है। सलाम। सवाल हजरत, जो गैर मुस्लिम लोग भाई भी इफ्तार पार्टी कराते हैं तो उसमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इसलिए कि गैर मुस्लिमों का माल किस किस जरिए से कमाया, सूद से, शराब से, हराम कारी से, हराम खोरी से, तो पता नहीं है। और आप दिन भर रोजा रखते हैं अल्लाह के लिए, तो हलाल माल से आप इफ्तारी कीजिए। गैर मुस्लिमों की, वहाबी देवबंदियों की, शियों की, कादियानियों की, या सुन्नियों में जो ब्यासखोर हों, हरामखोर हों, लुटेरे हों, उचक्के हों, चोर हों, इन सब के माल से इफ्तारी मत कीजिए। अपने रोजे को सेहतमंद बनाइए। वालेकुमुस्सलाम। मोहम्मद कौसैन भाई ने दुबई से सवाल पूछा कि हजरत, 10,000 रुपए किसी को बिजनेस के लिए दिए और वो हमारे पैसों से बिजनेस करता है, तो उससे कितना % ले सकते हैं? भैया कुछ भी नहीं ले सकते आप। हाँ, एक शर्त है कि आप उससे तय न कीजिए कि मैं इतने % लूंगा, वो जो खुशी से दे आप ले लें। और दूसरी सूरत यह है कि उसने किसी ऐसी फिक्स जगह पैसा डाला है जिससे एक फिक्स आमदनी है। मसलन 10,000 रुपया लगाने पर 15,000 रुपया आता है, और फिर वो तय कर ले कि मैं आपको 3,000 दूंगा, तो ये जायज है। लेकिन आप पैसा देकर फिर आप उससे तय करें कर्ज देकर, तो ये सूद है और हमारी शरीयत में सूद हराम है। सलाम। मोहम्मद रफी रजा खान हैदराबाद से, इन्होंने सवाल पूछा, मैं कई मरतबा घर से वजू करके निकलता हूँ नमाज के लिए, लेकिन रास्ते में कभी कभी कुछ लड़के गालियां देते रहते हैं एक दूसरे को, मुझे सुनाई देती है, क्या इससे मेरा वजू टूटेगा? गाली सुनने से, गाना सुनने से और फहश बातें करने या सुनने से वजू नहीं टूटता, अलबत्ता वजू के सवाब में कमी आती है, वजू में कराहत पैदा होती है। तो अब ये जो आपस में गालियां दे रहे, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये आपको सुनाई दिया, आपका वजू नहीं टूटेगा। वालेकुमुस्सलाम। टीपू सुल्तान मैसूर कर्नाटका से, इन्होंने सवाल पूछा है, हुजूर, सुन्नी की होटल में शराबी मुसलमान खाना बनाता है, उसके होटल में खाना कैसा, हुजूर रहनुमाई फरमाए। अगर वो शराबी है लेकिन मुसलमान है, अगर वो खाना बनाता है तो जायज़ है, लेकिन नहीं खाना चाहिए इस एतबार से कि फिर उसको नसीहत हासिल होगी कि मैं किस कदर बुरा काम कर रहा हूँ। अगर इस तरह लोग उसका बाइकआउट करेंगे तो फिर वो इस बदबख्ती से, इस हराम खोरी से, हराम कारी से बचेगा और अपने आप को बचाएगा। सलाम और रहमतुल्लाह। इलियास काजी ने सतारे से पूछा, पानी पीने का सुन्नत तरीका क्या है? पानी पीने का सुन्नत तरीका ये है कि पानी को गिलास में लीजिए और अच्छे से देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जिन्होंने रात में उठकर पानी पिया, सुराही से निकाल के मुंह में डाला, उसमें सांप का बच्चा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इशरबुल माअयून, पानी देख कर पिया करो। पानी देखें और पानी 3 सांस में पिए, चूस चूस कर पिए, मजा लेकर पिए, बैठ कर पिए। पीने से पहले दुआ पढ़ें, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। ये दुआ याद नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा पीए, बच जाए तो उसे वेस्ट ना करें, इन तरफ वगैरह में अगर पास में हो तो डाल दें। वल्लाहु ताला आलमु बिस्सवाब। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख जुल्फ़िकार मुंबई मानपुर से, इन्होंने पूछा, अगर कोई इमाम साहब बार बार नमाजों में नफल या सुन्नत या जिक्र नहीं पढ़ते हैं, वो इमाम साहब पर क्या हुक्म है? नहीं पढ़ते हैं का मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ते या कमरे में जाकर पढ़ते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कमरे में जाकर पढ़ते हैं, क्योंकि वित्र तो वाजिब है, तो वित्र के बिना तो ईशा की नमाज अधूरी है। तो उनसे पूछ लें, अगर वाकई में नहीं पढ़ते हैं तो फिर उनके इब्तिदा में नमाज न पढ़ी जाए। वालेकुमुस्सलाम। मोहम्मद नोमान, कहाँ से हो भैया? बार बार सुनते हो ना कि ग्रुप में अपना फ्रॉम भी लिखो, आपको अपना शहर भी लिखना चाहिए ना। उन्होंने पूछा, अगर कोई शख्स रोजा तोड़ दे बिला कोई उज़्र के और वो शख्स इस काबिल नहीं कि कफ़ारा अदा कर सके, तो वो क्या करे? कफ़ारा अदा करने के काबिल नहीं तो 61 रोजे रखे, इसलिए कि उसकी 2 सूरतें, या तो 60 मसाकीन को 2 वक्त खाना खिलाए, अगर वो नहीं कर सकता तो 61 रोजे रखे। वल्लाहु ताला आलमु बिस्सवाब।
वालेकुमुस्सलाम। साकिब रजा कादरी ने गोंदिया से पूछा कि जैसा कि आपने बताया कि दाढ़ी कट्टे की नमाज नहीं होती, अगर वो हमारे साथ इमाम साहब के पीछे सफ में नमाज पढ़े तो हमारी नमाज होगी? जी हाँ, आपकी हो जाएगी, इसमें कोई कराहत नहीं है। ये हुक्म कि जिससे सफा सब खत्म हो जाती है, कते सफ होती है, वो कुफार के लिए है, वहाबी देवबंदियों के लिए, दाढ़ी कट्टों के लिए नहीं। मुसलाम मोहम्मद उवैस रजवी बनारस से उन्होंने पूछा, शरीयत की रोशनी में जिम जाना कैसा, और जो आजकल कुछ लोग सप्लीमेंट बॉडी लेते हैं वो लेना कैसा? देखिए, वो जो आपने दवा बताई है सप्लीमेंट, वो जब तक आप जिम करेंगे तब तक ठीक है, बाद में वो बॉडी को गलाती है, तो ऐसी दवा का इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है जो बॉडी को गलाती हो। आप डॉक्टर से मशवरा कर लें। जिम जाना जायज़ है, हेल्थ बनाना अच्छा है, बॉडी बनाना अच्छा है, क्या पता कब कैसा वक्त आ जाए कुफार से दो हाथ करना पड़े। तो हर मुसलमान को सेहतमंद होना चाहिए, कुश्ती करना चाहिए, वर्जिश करना चाहिए, तैराकी करना चाहिए और बहुत सारे खेलों में हिस्सा लेना चाहिए जिससे सेहत बनती हो। लेकिन कुश्ती वगैरह में सतरे औरत का ख्याल करना चाहिए कि घुटनों से ऊपर खुला ना हो। इसी तरह जिम जाना भी जायज़ है, लेकिन जो दवा की बात आपने की है, वो पाउडर वगैरह होता है, वो आप डॉक्टर को दिखाएं। अगर वो आपको कहे ले सकते हो तब आप ले सकते हैं। सलाम मोहम्मद फैज रजा खान ने सवाल पूछा है सऊदी से, आगे सऊदी लिख दिया करो, कि सुन्नी सहीहुल अकीदा इंसान का वहाबी या देवबंदियों की मस्जिद में तन्हा नमाज पढ़ना कैसा? अगर कोई सुन्नी पढ़े तो क्या हुक्म होगा? नमाज हो जाएगी, लेकिन जिस मस्जिद को वहाबियों ने पूरे तौर पर अपने पैसों से बनाया हो उसमें नमाज पढ़ने से बचना चाहिए। लेकिन अगर कोई तन्हा उनकी मस्जिद में नमाज पढ़े तो नमाज हो जाएगी। और मसले की जो दूसरी सूरत मैंने बताई है कि जिस पैसे को पूरे तौर पर वहाबियों ने अपने पैसों से बनाया हो उसमें नमाज पढ़ने से बचा जाए, ये बेहतर है। वालेकुमुस्सलाम। ये जुनैद साहब है जमशेदपुर से। सवाल तो इन्होंने शाहजहांपुर से सवाल पूछा है, लेकिन ये गड़बड़ा गए हैं। ये पूछना ये चाह रहे हैं कि कोई शख्स वित्र को तरावी से पहले पढ़े तो पढ़ सकता है। असल में तरावी की नमाज होती ही है इशा के बाद। अब अगर कोई इशा की पूरी 17 पढ़कर तरावी पढ़े तब भी हो जाएगी, लेकिन ये जो तरीका तवादु से चला आ रहा है उसके खिलाफ है। लिहाजा बेहतर यही है कि इशा की नमाज हो, सुन्नत हो, फिर तरावी हो जाए, बाद में वित्र पढ़ी जाए, फिर बाद की नफल पढ़ी जाए। ये जो तरीका चला आ रहा है ऊपर से, उसी तरीके पर पढ़ा जाए, ये बेहतर है। लेकिन कोई इसके खिलाफ करे तब भी नमाज हो जाएगी। वालेकुमुस्सलाम। सलाहुद्दीन अंबर नासिर साहब पूछते, रमजान गैर रमजान में क्रिकेट खेलना कैसा? जो प्लेयर मुल्क के लिए खेलते हैं पैसों के लिए, उनका क्या हुक्म है? देखिए, रमजान और गैर रमजान में क्रिकेट अगर बिला शर्त खेला जाए, उसमें सतरे औरत की पाबंदी हो और औकात नमाज के न हो तो खेल सकते हैं, वर्जिश के तौर पर कोई बुराई नहीं है। ऐसा तो मदारिस इस्लामिया में भी होता है, हमारे यहाँ मदरसों में बच्चों की सेहत बनाने के लिए होता है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अब रहा कि जो मुल्क के लिए खेलती है टीमें, उनके बारे में अभी उलमा का कोई मुतहक्किक फैसला यानी तहकीक शुदा राय कोई अब तक मेरे सामने नहीं आई है। लेकिन जहाँ तक मेरी अपनी नाक़िस राय है कि वो पेशा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो लहू लईब है और उसमें वो ज़िक्रुल्लाह से रोकता है और हारने की सूरत में भी पैसा मिलता है, जीतने की सूरत में भी पैसा मिलता है। वो सारी चीज़ें टीवी पर लाइव कर दी जाती है, वीडियो शूटिंग होती है और उसमें बरहना औरतें डांस करती है, बहुत कुछ है उसमें, सट्टेबाजी भी हो रही है अब तो वो दुरुस्त नहीं है। वो पेशा इख्तियार करना या उसकी आमदनी लेना ये दुरुस्त नहीं है। बराए सेहत वर्जिश के तौर पर खेला जा सकता है। वालेकुमुस्सलाम। ये हमारे क्या नाम है इनका, फैजुद्दीन साहब मुंबई से, इन्होंने सवाल पूछा कि अगर कोई शख्स मगरिब की जमात में तीसरी रकात के रुकू के बाद शामिल हुआ तो सलाम फिरने के बाद बाकी की रकातें कैसे पढ़े? तो अब जाहिर सी बात है, रुकू के बाद शामिल हुआ तो इमाम साहब कादा करेंगे, आखिरी वाला ये कादे में रहेगा, इमाम साहब सलाम फेरेंगे, ये खड़ा होकर 2 रकात मुसलसल पढ़े, फिर 2 रकात के बाद कादा करे, कादे उला, अत्तहियात पढ़कर खड़ा हो, फिर 1 रकात पूरी करे। इस तरह वो अपनी नमाज पूरी करे। सलाम। ये हमारे हनीफ रजवी साहब मक्कतुल मुकर्रमा से, इन्होंने सवाल पूछा है कि मगरिब और इशा के अजान, मगरिब की नमाज और इशा की अजान के दरमियान कितना फासला होना चाहिए?
برائے کرم جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے بمبئی میں میں جہاں ہوں 1 گھنٹہ 35 منٹ مغرب کے بعد بھی مغرب کا وقت رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یو پی وغیرہ میں دوران طالب علمی جب ہم نے وہاں حساب لگایا تھا، تقویم بنائی تھی، تو 1 گھنٹہ 18 منٹ ہوتا ہے، لیکن سعودیہ میں جب میں خود بھی آیا تھا گزشتہ سال عمرہ کے لیے، تو وہاں پہ کم از کم 1 گھنٹہ کے بعد ہی عشاء کا وقت ہوتا ہے، مغرب کے 1 گھنٹہ کے بعد۔ لیکن اگر کوئی 10 منٹ اور بڑھا لے کہ 1 گھنٹہ 10 منٹ کے بعد عشاء کی اذان دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔